Yeah. One little confusion about fasting, fasting format for Vishu Tattva. First is, hey, you have kept the laptop, no? Okay. First is? Related to fasting and the prasadam during fasting. Recently in ISS meeting also last week we had a discussion, but no consensus came. Regarding? Basically, fasting for Vishu Tattva. There are some temples. Regarding Ramnami, I have a 30-page article with me. We have that stack. Still a confusion. For example, he says that you can take either grains or anukalpa, the property set of any standard, and then also fasting till noon and fasting till evening. Correct. So now, for all Vishnu, fast till noon only. For example, nursing in the evening. Oh, that is twilight. Lord appeared in the evening. Chaitanya Mahaprabhu will do in the evening. But he appeared in the moonrise time. So, According to the appearance time. Ramnavami, Prabhupada, they released Prabhupada's statement. He said, Prabhupada, different locations Prabhupada set up, like, sometimes till noon Prabhupada did, some places Prabhupada did till evening. But my question is different. Out of the two, which is easy for devotees? Noon is easy, right? No? Sorry? Out of the two. अगर हम बोलेंगे भक्तों को फास्टिंग टिल नून कर सकते हैं, नहीं तो फास्टिंग टिल शाम को कर सकते हैं, तो मोस्ट डिवोटीज विल प्रेफर which one? Therefore Gopaksha Maharaj said in Delhi also, fast till noon and then cook proper normal prasad and take. Actually मैं क्या करता हूँ, एकदम सरल चीज़ है, मायापुर, वृंदावन, दिल्ली और चौपाटी, 4 मंदिर और जुहू, 5 मंदिर में पूछता हूँ और देखता हूँ कि मोस्टली हो सकता है कि उसमें से मेजॉरिटी में लेता हूँ. मेजॉरिटी आर फॉलोइंग वन थिंग. I just take that. Makes it very easy for us. Otherwise, if we say something on our own, then people will say that आपने ऐसा कैसा निर्णय लिया, हमको पकड़ेंगे. So, a couple of years back, I asked Gopal Krishna Maharaj, because two person follows non-grains for all Vishnu Tattvas. Is it, huh? Haribhakti says if you eat grains, you go to hell. But our official release of Spawn official sack says either way you can go for that. In Delhi and Actually, हरि भक्ति विलास में जो दिया हुआ विधि विधान है, वो कट्टर ब्राह्मण भी होते हैं, उनके सर पर भी दिया है अनेक चीजें उसमें. अगर आप हरि भक्ति विलास को पूरा फॉलो करना चाहते हैं आजकल के जमाने में, प्रभुपाद ने बोला यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द बाथरूम ओनली. प्रभुपाद ने बोला ऐसे, तो इसलिए हम जो भी उचित है प्रभुपाद ने दिया उसको हम फॉलो करते हैं. या for example, in same distance, for example, in 100 or 200 kilometer distance, one temple is say having grains prasadam, another temple is having onukal prasadam. So you travel same day, both the temples. So one place you are taking grains, another temple and you take onukalpa. Yeah. So on that situation, my question is that, लेकिन उन्होंने क्या अभी रामनवमी का जो स्टैंडर्ड सैक पेपर आया है, उसमें उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा. उन्होंने प्रभुपाद का बोलना था कि फास्टिंग टिल नून प्रभुपाद ने बोला है, और उसके आगे जो है हमारे मंदिर में अनेक नए लोग भी आते हैं. right. और हमारे इस्कॉन प्रचार का मूवमेंट है, और अगर हम बाबा जी होते वृंदावन में 5-10 लोग अगर हम रहते तो हम बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं. अभी ऐसे देखा जाए तो विष्णु तो हर महीने में 1-2 आ जाता है ऐसे, तो ऐसे एकादशी देते जाएंगे, नए लोगों को संस्था की ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे. right. तो प्रभुपाद जी बोलना था कि वैसे तो देखा जाए तो अनेक चीजें प्रचार के संस्था में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है. उदाहरण के लिए जो लोग वृंदावन में व्रत 1 लाख नाम 2 लाख नाम जपने वाले होते हैं, अभी रघुनाथ दास वो क्या खाते थे, वो 3 दिन में 1 बार छाछ पीते थे, वो ऐसा हम में से कौन कर रहा है अभी? अगर हम इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूवमेंट प्रचार का मूवमेंट है, तो किस तरह के वैरायटी का प्रसाद हम दे रहे हैं. करेक्ट है. इस्कॉन में इतना यात्रा में जाते हैं तो 12 आइटम प्लेट में, तो इतना हम रिलैक्स करते हैं नए लोगों को इंस्पायर करने के लिए. लेकिन भक्तों को क्या करना चाहिए, जैसे एक बार मैं मायापुर में था, वो लोग 3 स्वीट दे रहे थे, मिष्टी दही और एक क्या बोलते हैं उसको, रसगुल्ला, गुलाब जामुन. हाँ, रसगुल्ला. हाँ, रसगुल्ला भी दे रहे थे. ऐसे 3 आइटम दिया उन्होंने. तो मैं कमेंट मार रहा था कि मेरे इनके निकट बैठा था, मैं सुखदेव महाराज के नेक्स्ट बैठा था, महाराज 3-3 स्वीट क्यों दे रहे हैं, हम तो यात्रा में आए हैं, तो तपस्या करनी चाहिए.
महाराज ने तुरंत मुझे पूछा तुमको क्यों खाना है 3 स्वीट? वो दे रहे हैं लेकिन तुमको यू जस्ट टेक 1 स्वीट, ऐसे बोला उन्होंने। और मैंने बोला नहीं, क्यों में जब आते हैं सब देते रहते हैं। वो बोले वो देंगे, जिनको चाहिए वो देंगे, और अगर आपको और भी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करना है तो पर्सनली बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, बी लीनिएंट विद अदर्स, ऐसे उनका बोलना था। अभी आइटम में अगर 12 आइटम दे रहे हैं सबको, हम यात्रा में हैं तो तपस्या करना चाहते हैं, 4 आइटम दे सकते हैं, 4-5 आइटम। हमको डांटने वाला कौन है? कोई नहीं है। खुद को निर्णय लेना है। जैसे आपने गोपाल महाराज को बोला, दिल्ली में उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है, फास्टिंग टिल नोन, उसके बाद रेगुलर प्रसाद सबके लिए, रामनवमी के दिन, Non-grains actually. ना The daily is all Vishnu Tattvas Anukalpa. नहीं, वो सब पब्लिक के लिए, Everything Anukalpa. हाँ Yes. अभी That I checked with them. you check with them, then we should follow that. Whatever they follow, we should do it. No, but other temple, Mayapur, they are not doing. अच्छा, Yeah, Mayapur, they are doing regular prasadam. That's why, you know, I you also. know what they are doing? Actually, इसमें आर्टिकल में क्या लिखा है, Article अगर आप both. रामनवमी के दिन एकादशी प्रसाद देंगे, नए लोग आएंगे, उनको बहुत डिस्करेजमेंट होगा, Right. ऐसे लिखा है उसमें, Hmm. और पेपर में लिखा। अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। दोनों हैं then. तो सीरियस भक्त लोग क्या लेंगे? अनुकल्प लेंगे, और बाकी लोग ईस्ट लेंगे, ऐसे। Even newcomers also, they sometimes here, North India, they prefer Anukalpa. They do fast for Ramnavami. Yeah. हाँ, Just last one, Prabhu, on that recently they released DT Ministry, another paper. पहले क्या बनाया था रात को इधर? We did Anukalpa. अच्छा, But we are like this year we are planning to do, you know, most of the temple are doing, you know. So we changed because we asked Gopal Krishna Maharaj long back. What Maharaj said? Anukalpa, all Vishnu Tattvas Anukalpa. He says we should not discuss. Varaha appearance. Varaha appearance, that is Ekadashi day, Varaha day. So that is already Ekadashi. Varaha द्वादशी के दिन That is Ekadashi. We first Varaha. पहला दिन पास कर लेते हैं। हाँ, पहला दिन. So that is. But आमर द्वादशी that is also Ekadashi comes. one day before आ जाए। Ekadashi comes. Yeah. एकादशी के साथ जुड़कर कर लेते हैं। जुड़कर, हाँ. So. नहीं तो 2 दिन करना पड़ेगा। But recently, last question, that they DT Ministry they released that this is, you know, for Chaitanya Mahaprabhu's appearance also, which we are doing from childhood Anukalpa. This is Prabhupada says you can take grains or Anukalpa both. That's why, because, you know, लेकिन some devotees के appearance हम जन्माष्टमी के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। but now this latest paper released by ISKCON DT Ministry and SAG, it says, you know, Prabhupada didn't set up for Gaur Purnima, only Janmashtami. Prabhupada says Anukalpa, other festival is up to you. Yes, I can send you that paper. Okay. For Gaur Purnima also. Is it? So some devotees are confused about this, that's why. No? Oh, I didn't see the latest paper. I share I you. got Ramnavami paper. Yeah, Ramnavami was separate, but, you know, this for all Vishnu Tattvas, they. I think they're relaxing, I think now. Huh? Okay, Prabhu, thank you. Thank you. और कोई? आपका आवाज आकाशवाणी जैसे सुनाई दे रहा है, कुछ तो ऊपर से आ रहा है, हाँ? कभी तो क्या होते हैं कि हम टीचिंग के एक्सपांड करने के उसमें चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, कितना हद तक कॉम्प्रोमाइज करना। देखिए, कोई भी सेल्समैन मार्केट में बाहर जाता है कुछ बेचने के लिए, अगर कोई कोट सूट बूट टाई सब पहनकर सूटकेस भी हाथ में लेकर जाकर मार्केट में खड़ा होता है, एक वॉच सेल्समैन, वॉच सेल्स करने वाला, कोई पूछेंगे उसको अरे टिप टॉप दिख रहे हो, क्या बेचना है, तो सूटकेस खोलता है, अंदर वॉच नहीं है, अगर अरे भूल गया लाने के लिए, तो प्रोडक्ट ही नहीं लाया उसने, अच्छी तरह ड्रेस करके टिप टॉप ड्रेस करके आया है, वो सेल्समैन अच्छा है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगर प्रचारक होते हैं, हम क्या माल बेच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे नित्यानंद प्रभु वो माल बेच रहे हैं हरिनाम का, और उसके लिए मूल्य क्या ले रहे हैं, श्रद्धा। अभी लोगों को अगर हमारे ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए और हम हरिनाम और हरिकथा का माल देना चाहते हैं उनको, तो ये सब्सटेंस कैसे हमें प्राप्त होगा वो देखना चाहिए पहले। ये प्राप्त होता है मॉर्निंग प्रोग्राम से, 4:30 to 9:30 जो है मॉर्निंग प्रोग्राम। इसमें तीव्रता से एक व्यक्ति को लग जाना चाहिए कि
जैसे ध्यानपूर्वक जपना, ध्यानपूर्वक आरतियों में भाग लेना। अगर हम नहीं भाग लेंगे ना, नए लोगों को बोल भी नहीं पाएंगे। आपको आना चाहिए। मेरा अनुभव ऐसा रहा है, कहीं भी बड़ा मंदिर बना हो इस्कॉन का, फेस्टिवल के दिन बहुत भीड़ आ जाता है, सैटरडे संडे वीकेंड में बहुत भीड़ आता है, और जनरल अगर कीर्तन मेला रखेंगे तो लोग आकर बैठते हैं। लेकिन प्रातः काल के कार्यक्रम में बहुत मुश्किल है लोगों को लाना, खास करके 4:30 to 9:30। मंदिर के निकट घर भी लिया है अनेक लोग, लेकिन प्रातः काल में नहीं आएंगे। वो बोलेंगे अरे निकट ही है, कभी भी जा सकते हैं, ऐसे बोले। हाँ? तो प्रभुपाद जी की बहुत एम्फेसिस थी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आपको कब प्राप्त होता है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभुपाद बोले ऑल डिवोटीज इन इस्कॉन वर्ल्ड वाइड राइज बाई व्हाट AM? प्रभुपाद जी ने बोला, एक तात्पर्य में लिखा है बाई 4 AM लिखते हैं। 4 बजे उठने का, 4:30 रेडी होकर आ जाने का, 4:30 से। और भक्त लोग साथ में जब भक्ति करते हैं, भक्ति शक्ति मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक भक्त बैठकर जप करता है तो उसमें थोड़ा शक्ति है, लेकिन अगर 100 भक्त मंदिर के हाल में बैठकर जप कर रहे हैं तो पूरा उसका इफेक्ट, क्योंकि भक्ति देवी और प्रभावित हो जाती है, और भी शक्ति बढ़ता है, सबका शक्ति मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। तो जिस मंदिर में सुबह के कार्यक्रम के लिए जोर दिया जाता है, मंदिर का मतलब मंदिर ही नहीं, आपके बेस सेंटर्स भी जो हैं वो भी मंदिर जैसे फंक्शन करते हैं वो। तो ब्रह्मचारी इसमें रुचि दिखाना बहुत आवश्यक है। अगर हम नाम जप में, भागवत सत्र सुनने में, और आरतियों को अटेंड करने में, और आचार्य को और भगवान को नमस्कार करने में, इस तरह इन चीज़ों में अगर हम रुचि दिखाते हैं, हमारा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ता है इन चीज़ों से। लेकिन आजकल देखा जाता है अनेक लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। अभी मृदंग सीखना अच्छा, कीर्तन मेला में कुछ लोग अच्छे कीर्तन करके यूट्यूब में छोड़ते हैं, लाखों लोग सुनते हैं उनको। तो कभी कभी छोटे लड़के लोग भी, लड़कियां भी आजकल वो एक परफॉर्मेंस के मोड में चले गए हैं कुछ लोग। इसी तरह कुछ लोग बच्चे को सिखाते हैं कैसे कृष्ण कथा बोलना। कभी कभी आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, अब उनका भी यूट्यूब चैनल बना देते हैं, उनका भी ऐसे है। तो आजकल भक्ति परफॉर्मेंस के मोड में चल रहा है अनेक बार। अगर हमारे लोग भी स्किल डेवलपमेंट होते तो कैसे पब्लिक स्पीकिंग करना, कैसे स्टेज के ऊपर चढ़कर अनेक लोगों को प्रभावित करना वाक चातुर्य के द्वारा, इस तरह के चीज़ अच्छे हैं। लेकिन अंततोगत्वा शास्त्र बताते हैं कि करिश्मा अट्रैक्ट्स पीपल, कैरेक्टर होल्ड्स पीपल। करिश्मा का मतलब है, करिश्मा से अगर कोई आकर्षित करता है लोगों को, हजारों लोग आएंगे। ये कार्यक्रम कीजिए, 1000-2000 आते हैं, लेकिन कितने लोगों का पकड़ कर रख पाओगे आप? हम पकड़ कर रखना तो मॉर्निंग प्रोग्राम है। मॉर्निंग प्रोग्राम में जो गंभीर बनेगा वो निकल कर जाएगा ही नहीं। अभी प्रॉपर डिसेबल जितने स्ट्रांग कैसे बने, क्योंकि बहुत बड़ा एम्फेसिस था मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो और मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद दिन में अगर हम लोग प्रॉपर की तात्पर्य कैसे पढ़ना चाहिए, पहले श्लोक पढ़ना, मीनिंग पढ़ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और तात्पर्य पढ़ना। उसके बाद कंटेम्पलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक लोग बोलते हैं कि हमने इतना पेज हो गया, 1 घंटा पढ़ा हमने, नहीं तो हफ्ते में 4 घंटा पढ़ा प्रभुपाद की किताब। अब अगर पढ़ने के बाद भी किसी में परिवर्तन नहीं आता है, उसका ये कारण है कि वो जो पढ़ा उसके बारे में सोचा नहीं है वो। इसलिए पहला श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, पठनम, और व्हाट इज लास्ट वन, 5 विधि है। पहला श्रवणम का मतलब है सुनना, नहीं तो पढ़ना। अभी मननम का मतलब है उसको रिकलेक्ट करना, जो मैंने पढ़ा, जो सुना मैंने, उसको नहीं कि नोटबुक दे के बिना रिकलेक्ट करना चाहिए उसको, देखे बिना। और मननम का और एक मीनिंग है, जो मैंने सुना उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों इसे बताया गया है, कारण क्या है। उदाहरण के लिए हम सुनते हैं कि अगर कोई कुसंग में फंसेगा तो उसका पतन होगा। अभी अजामिल कुसंग में फंस गया, हमारे मन में पूछ सकते हैं कि ऐसा है क्या, कुसंग के संपर्क में कोई भी आएगा पतन होगा उनका? तो एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ, नारद जी ने भी देखा नलकुर मणिग्रीव को, वो गंदे अवस्था में देखा, वो नग्न अवस्था में देखा उनको, वो जल क्रीड़ा कर रहे थे देवियों के साथ, तो उनको भी कुसंग प्राप्त हुआ, उनका पतन क्यों नहीं हुआ? ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। वाई, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। आंसर क्या है,
आंसर है नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं और उनकी आंखें जो है प्रेम चक्षु उनको मिल गया। अगर प्रेम चक्षु किसी को मिल गया तो कुसंग में वो फंसता नहीं, कुसंग आने के बावजूद भी। इसके लिए और कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या कोई? कोई बड़े महान वैष्णव कुसंग में डाले जाने के बावजूद भी पतन नहीं हुआ उनका। हाँ, हनुमान जी लंका में कितने स्त्रियों को देखा उन्होंने, कुसंग बहुत था लेकिन फंसा नहीं। हाँ, रामानंद राय, हरिदास ठाकुर, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं। करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग सोचने से मनन होता है और मनन ऐसे होने से क्या होता है, समझावट आता है कंटेम्पलेशन से। अभी कंटेम्पलेशन फिलॉसफी के ऊपर है, उसके बाद रिफ्लेक्शन पर्सनल लाइफ के ऊपर है। अभी पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्शन कैसे करना चाहिए। हाँ, जो अजामिल के बारे में पढ़ा मैंने, ये तो हमारे जीवन में भी सही निकला। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे ही कंप्यूटर में काम कर रहे थे, अचानक कुछ पॉपअप आ गया, किसी ने उसको पॉपअप को प्रेस किया, कुछ वीडियो देखा, अश्लील चीज, उसके दिमाग खराब हो गया, उसके बाद उसके मति बिगड़ गया। करेक्ट ना? तो ये विद्यार्थी सोच सकता है कि ओ, जो अजामिल को हुआ मुझे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो हजारों साल के पहले हुआ, अभी भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे लिए कुसंग क्या क्या है, एक लिस्ट बना सकता है। जो हमारे पुराने मित्र, जो भक्त नहीं है, नहीं तो वाईफाई फ्री में मिलता है, तो इस तरह से 3-4 चीज कोई बना सकता है। इसका मतलब है नॉट ओनली इज डूइंग कंटेम्पलेटिंग, इज ऑल्सो डूइंग रिफ्लेक्टिंग। और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, ये तीनों आता है मनन में। प्लान ऑफ एक्शन ने अजामिल देखे पहले कंटेम्पलेट किया, क्या बोला ये जो विष्णुदूतों ने, वो उसके बारे में सोचा। उसके बाद रिफ्लेक्शन किया, मेरे जीवन में कैसे मैंने अनेक पाप किया। ऐसे रिफ्लेक्शन करते करते जोर से रो पड़ा हो। इसका मतलब उसकी मन पिघल गया, उसका हृदय, कि मैंने वैश्यागमन किया, धार्मिक माता पिता को भगा दिया, मेरे धर्म पत्नी जो पतिव्रता नारी थी उसको मैका में भेज दिया, और इतने में मेरा जीवन भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार सब किया। अभी नरकगामी हो गया हूं मैं, यमदूत भी आ चुके। लेकिन भाग्यवश भगवान ने मुझे सेकंड चांस दिया है, मैं बच गया। और जोर से रोने लगा, अपने पश्चाताप करने लगा रिफ्लेक्शन करने के बाद। उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन किया, उसके अंदर वो जो पश्चाताप था वो एक दृढ़ता के रूप में परिवर्तित हो गया, वो डिटर्मिनेशन। अभी मैं ऐसे क्या प्लान ऑफ एक्शन, अभी तत्क्षण में छोड़ दूंगा, अगर इधर घर में पापी घर पे नहीं रहूंगा, हरिद्वार चले जाऊंगा, विष्णु के मंदिर में भर्ती हो जाऊंगा, विष्णु की पूजा आराधना करूंगा, गीता भागवत पढ़ूंगा, साधु संतों के संग करूंगा, गंगा में नहाऊंगा, हाँ जीवन में भक्त बनकर रहूंगा। ऐसे उन्होंने दृढ़ता के साथ निर्णय ली, वो प्लान ऑफ एक्शन है। जब उसको प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट किया, वैकुंठ विमान आ गया उनका। तो यही मनन है, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। तो तीसरा पॉइंट क्या है, निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब है आप जो श्रवण किया उसको जीवन में लागू करना, लागू करके आप उससे साक्षात्कार प्राप्त करना, उसको बोलते हैं निदिध्यासन। दैट मीन्स लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। अभी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग आता है श्रवण और मनन से। निदिध्यासन में एप्लीकेशन, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, रियलाइजेशन, अवेकनिंग, साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। अब साक्षात्कार किस तरह की साक्षात्कार प्राप्त होता है, ज्ञानी लोगों को नित्य अनित्य वस्तु विवेकम ऐसे बोलते हैं। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पकड़ना चाहिए हमको, क्या त्यागना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। ये क्लियर कट, दूध दूध पानी पानी, क्लियर समझ में आ जाता है। शुरुआत में जो व्यक्ति का दिमाग कंफ्यूजन में रहता है इस दुनिया में, वो ही भटक जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन जो श्रवण मनन निदिध्यासन करता है, अप्लाई करता है, उसको साक्षात्कार आ जाता है कि अभी जड़ रहता है, उसको क्लियरली मालूम था कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करेक्ट है? और यह अमूत्र भोगादि विरागम बोलते हैं, वो भी निदिध्यासन है। यह का मतलब धरती में, यह अमूत्र का मतलब स्वर्ग, भोगादि विरागम, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उस स्तर पर। जब साक्षात्कार आ गया, उदाहरण के लिए मैं इधर एक लड्डू दिखाता हूँ आपको, आप भागते हुए आओगे, प्रभु जी लड्डू है क्या, क्या बालाजी लड्डू लेके आए आप। लेकिन निकट आने के बाद देखते हो उसमें चींटियां हैं। ये एक चींटी होता है जो लाल और काला होता है दोनों, करेक्ट है ना, छोटा। अगर पूरा चींटी, सैकड़ों चींटी है उसमें, निकट आकर आप देखते हो, आप मांगोगे,
आप क्या बोले, फिर सारी पूजा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको साक्षात्कार हो गया कि ये खाने लायक नहीं है। इसी तरह ही एक व्यक्ति माया को देखता है, दूर से आकर्षक दिखते हैं, लेकिन निकट आने के बाद उसको पता चलता है ये सुख नहीं देगा हमको। कुछ लोगों को अनुभव करके समझ में आता है, कुछ लोगों को श्रवण करके समझ में आता है, कुछ लोगों को श्रवण करके और देख कर समझ में आता है कुछ लोगों को। Some people hear and get realization. Some people hear and watch the world around, then they get realization. Some people hear, see and then experience. उसके बाद रियलाइजेशन आता है उनको। लेकिन अंततः हमको रियलाइजेशन जब जग गया तो ऐसे व्यक्ति वो अनावश्यक चीजों को त्याग देगा। वो उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा नहीं तुम्हारे लिए त्याग दो, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप छोड़ देगा जो उचित नहीं है, वो छोड़ देगा। तो इसलिए हमको श्रवण मनन निधिध्यासन स्तर पर आना चाहिए, क्योंकि अभी निर्विशेषवादियों का निधिध्यासन ये दो बोला मैंने आपको, जो नित्य नित्य वस्तु विवेकम जिहा मूत्र भोगादि विरागम। अभी भक्तों के लिए और एक है इसके आगे, क्या है? भोग भी नहीं करना, त्याग भी नहीं करना, सब चीजों को भगवान की सेवा में जोड़ना, छोड़ना नहीं लेकिन जोड़ना, भक्तों को जाना चाहिए। अभी हरिदास ठाकुर के सामने एक वेश्या आई तो उसको भी जोड़ दिया भगवान की सेवा में, हरिदास ठाकुर। लेकिन क्या सब लोग सब चीजों को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक व्यक्ति स्टूडेंट क्लास में बैठा था तो राधा गोपीनाथ प्रभु क्लास दे रहे थे और उन्होंने पूछा कि ठीक, अगर तुम पार्क में बैठकर जब करते हो, एक खूबसूरत नारी उधर आकर आपके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही है आपको देखकर, अब आंख खोल कर देखते हो तो आपको कुछ प्रलोभन दे रही है वो। कभी कभी ये वेश्या लोग अच्छी तरह सजा कर आती है ऐसे, है ना, तुमको क्या करना चाहिए? तो एक लड़का हाथ ऊपर गया, प्रभु जी बोला क्या जवाब तुम्हारा? वो बोला कि प्रभु जी उसको बिठा कर थोड़ा हरि नाम सुना दूंगा, ऐसे बोला उसने। क्यों? प्रभु जी ने पूछा। हरिदास ठाकुर ने वही किया, उसको सुना सुना कर 3 दिन में भगत बना दिया उसको। राधा गोपीनाथ प्रभु बोले अरे मूर्ख, तुम ऐसे देखोगे तो उठकर भागना चाहिए तुमको, और आज भागते हुए भी, भागते समय भी जोर से हरि नाम लेते लेते भागना चाहिए तुमको, ऐसे बोले। तो लड़का द्वंद्व में पड़ गया, पूछा कि क्यों प्रभु जी, हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड क्यों है? वो बोला कि तुम हरिदास ठाकुर नहीं है, उनका जो साक्षात्कार है तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम उसको उद्धार करने की चक्कर में तुम खुद पतित हो जाओगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हैंडल करना सबको मालूम नहीं। कितने लोग आप जानते हो फ्यूज कैसे डालना? कितने लोग जानते हैं फ्यूज डालना? हाँ, तो ये लोग फ्यूज कर सकते हैं। अगर आपको मालूमात नहीं है, फ्यूज डालने के लिए जाओ, शॉक लग जाएगा, धुत 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 गिर जाएगा, करेक्ट है ना? इस तरह माया को सब लोग हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए माया के चीजों को, जितने चीजों को भगवान से जोड़ सकते हैं उतना ही करना चाहिए हमको। जैसे कुछ लोग स्मार्टफोन हैंडल नहीं कर पाते हैं, स्मार्टफोन आने के बाद उनका इतना चक्कर आ जाता है, दिन भर उसके साथ समय बिताते हैं, माला नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता। इसका मतलब स्मार्टफोन हैंडल करने के लिए उनके अंदर आत्म संयम नहीं है। उनको क्या करना चाहिए? स्मार्टफोन को फेंक दो, एक छोटा फोन कीपैड रखो, करेक्ट है ना? इसी तरह कांग्रेगेशन पिचिंग में कोई जाता है, ब्रह्मचारी जाता है, माताओं को माताओं के रूप में ट्रीटमेंट देता है अच्छी तरीके से। माताओं को भी अच्छा लगता है कि ये गुणवान, शीलवान, भक्तिमान, कोई भक्त सिखाए, सब लोग सीखते हैं अच्छा। लेकिन अगर कोई किसी के अंदर कैरेक्टर नहीं है, चरित्रवान नहीं है, वो किसी को मिस हैंडल कर देता है, उसके कारण पूरा मंदिर का बदनाम होता है, इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का पेपर में आ जाता है, करेक्ट है ना? इसका मतलब है उसको स्त्री, पैसा, जमीन इत्यादि को हैंडल करने के लिए क्षमता नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के पास ये सब आता है तो गर्व चढ़ जाता है, कुछ लोगों के पास ये सब आता है तो शोषण भावना आ जाता है। लेकिन कुछ लोग जो प्रगतिशील भक्त हैं, वो ये सब चीज आने के बावजूद भी विचलित नहीं होंगे। वो न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम, ऐसे महाप्रभु बताते हैं। तो इस तरह हमारे साक्षात्कार के स्तर पर ये भोग को भी त्यागना, भोग और त्याग दोनों को छोड़कर भक्ति में सब चीजों को भगवान से जोड़ना, ये साक्षात्कार भी मिलना चाहिए भक्त को। इस तरह हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य के तात्पर्य को पढ़ते समय उसमें गहराई से घुसकर जो समझेगा अच्छा, उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद वो एकदम कंफर्टेबली आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभा पाएगा वो। सी हु कैन डू द स्पिरिचुअल ड्यूटीज हैप्पीली विदाउट एनी काइंड ऑफ लेथर्जी,
कौन कर सकता है? उसको भौतिक पदार्थों में आकर्षण नहीं है, वही कर सकता है। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाई, ऐसे एक श्लोक है ना, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाई, ब्रह्म लोक आर सुख नहीं भाई, ऐसे एक श्लोक है। इसका मतलब है अगर किसी को कृष्ण के श्री चरणों की धूलि का पद्म का गंध मिल गया, उसका मतलब उसमें आकर्षण लग गया, उसका मति उसमें लग गया, तो उसको इस धरती की बात छोड़ो, इंद्रलोक की बात छोड़ो, ब्रह्मलोक में भी जो सुख है वो भी उसको आकर्षित नहीं कर सकता, ऐसे बताते हैं। तो इसका मतलब है वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनयति आशु वैराग्य। तो हमको ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान दोनों चाहिए। ज्ञान प्राप्त करते हैं तात्पर्यों से, और साथ साथ वैराग्य को भी अपनाना चाहिए। ये दोनों साथ में चलेगा तब भक्ति मजबूत होगा। भक्ति जब मजबूत होता है हम तृप्त हो जाएंगे। जैसे नारद भक्ति सूत्र में बताया है, तुष्टो भवति, तृप्तो भवति, आनंदी भवति, ऐसे बताते हैं। एक जीव तृप्त हो जाता है, तुष्ट हो जाता है, आनंदी हो जाता है, और वो सोचता है कि भक्ति को छोड़कर इस दुनिया में कुछ चीज सब फीके पड़, बाकी सब फीके पड़ जाते हैं उसको। अगर बाकी सब फीके पड़ गए तो मैं क्या करूंगा, भक्ति में ही लगे लगे रहूंगा ना हमेशा। दूसरी चीजों में आकर्षण नहीं है। लेकिन क्या होता है, इस्कॉन में भक्त लोग आते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, भक्ति भी करना है लेकिन प्रलोभन भी है, दूसरी चीजों में भी आकर्षण है। ये दोनों होते समय क्या होता है, भक्ति में भी थोड़ा ये होता है, क्या बोलते हैं, उथल पुथल होता है, स्टेडीनेस। इसलिए हम लोग अनंत निवृत्ति स्टेज को पार करके निष्ठा भक्ति में आना चाहिए। तो इसका मार्ग श्रवण ही है, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन इत्यादि मार्ग है। तो श्रवणम मननम निधिध्यासनम, इज क्लियर। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में एक स्टैंडर्ड बाहर एक स्टैंडर्ड, क्या बाहर हो मंदिर हो, अंत तो गत्वा भक्त समझता है कि भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, हर जगह है भगवान। हमें एक बार असिस्टेंट आया था मेरे साथ मायापुर में, तो मॉर्निंग मैं मंगलारतीपुरम में गया था, वो भी आया था, गुरु पूजा के बाद वापस लौट आ गया, कमरे में सो रहा था। मैं जराने बस प्रभु का क्लास अटेंड करके वापस लौट आया 9 बजे, 9:15 बजे आया, देखा कि लेटा है रूम में। पूछा उसको, तुम क्लास अटेंड नहीं किया, इतना बढ़िया क्लास हुआ आज? बोला, प्रभु जी मुझे मालूम नहीं था कि जब हम पुनः मंदिर छोड़कर कहीं दूसरे मंदिर में जाते हैं उधर स्टैंडर्ड क्या है, हमको मालूम नहीं था। मैंने बोला, क्या स्टैंडर्ड, इधर खाते हो कि नहीं? बोला, हाँ खाता हूँ। अभी उसका स्टैंडर्ड क्यों नहीं पूछा तुमने? प्रभु जी दूसरे मंदिर में जाने खाना चाहिए कि नहीं, पूछोगे? पूछे बिना खाते हो ना, इस तरह पूछे बिना क्लास अटेंड करना चाहिए। अगर खाने का स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, वो शरीर के लिए खाते हो, तो आत्मा के लिए भागवतम वो भी लेना चाहिए। ऐसे मैंने बोला, ठीक है प्रभु जी आपने बोल दिया, कल से हम फॉलो करेंगे, बोल रहा था। तो एक्चुअली ये हमें सोच लेना चाहिए कि कहीं भी हो हम, ये प्रभुपाद जी के कार्यक्रम को हमें करना चाहिए। कभी कभी मुझे अगर गुरु पूजा मिस हो गया एक दिन कुछ कारणवश, तो मैं इधर उधर जाते समय, नहाते समय हम गा लेते हैं वो श्री गुरु चरण पद्मा, और गाते समय उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। प्रभुपाद के गुणगान में गा रहे हैं, अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रहे हैं, इस तरह। So any devotee who is consciously performing devotional service will be happy in devotional service. And especially all of you are coming up with a beautiful new temple. The spiritual sound vibration is the real sweetest thing in any temple structure. अभी वृंदावन में कितने लोग मंदिर बनाकर, धनी लोगों ने मंदिर बनाकर छोड़ा है, लेकिन उधर कीर्तन करने वाले नाचने वाले कोई नहीं है, करेक्ट है ना? वो लेकिन मशीन होता है, डेंग टोंग टोंग ऐसे लगा देते हैं, ऐसे देखा आपने? वृंदावन में जाते में देखने को मिलेगा। और सड़क में चलते समय हम देखते हैं खाली पड़ा है मंदिर। मैं कभी कभी घुस जाता था किसी भी मंदिर में, जाकर नमस्कार करके आते थे। सुंदर विग्रह भी वही रखा है, विग्रह सुंदर है, राधा कृष्ण का डेकोरेट किया है, डेकोरेशन भी सजाते भी हैं, क्योंकि अपॉइंटेड पुजारी कोई होता है उधर, क्योंकि सेठ जी लोगों ने लगा कर रखा है किसी को। लेकिन मंदिर में आकर बैठ कर कीर्तन करने वाला, प्रवचन बोलने वाला कोई नहीं है। कभी कुछ कुछ मंदिरों में गला में एक व्यक्ति बैठा है, एक रसीद बुक लेकर, उतना ही है, कोई नहीं है उनके पास। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद की इच्छा थी कि इस तरह हमारे मंदिर नहीं हो। हमारे मंदिर में कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण शिक्षा हो, कृष्ण भक्त संग हो, कृष्ण नाम का वितरण हो, और कृष्ण प्रसाद, ये सब का वितरण हो। और जो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में जाइए वृंदावन में,
उधर एक राई का दाना डालने के लिए जगह नहीं दामोदर महीने में, देखा आपने? इतना, मैं खुद उन दिनों में आइंद्र प्रभु के निकट ही बैठता था मैं, हाँ? आइंद्र प्रभु जब गाते थे उधर में घुस घुस कर लास्ट में उनके निकट एक जगह प्राप्त होता था बैठने के लिए। तो बैठ जाओ, 4 घंटा भी बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा आपको, हाँ? ऐसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं हारमोनियम बजाकर, इतना भक्ति भाव के साथ गाते हैं। और उनके मृदंग बजाने वाले चार चार पूछो मत क्या क्या बजाते हैं वो लोग, हैं? ऐसे इतना बढ़िया बजाते थे। और प्रभु जी सबको नचाते भी थे, सबको गाने के लिए सिखाते थे, वृंदावन में लोग वगैरह गाते थे ऐसे, हैं? तो इस तरह इतना मधुर कीर्तन है, इतना सुंदर दर्शन है, प्रसाद है, हाँ? तो माहौल इतना सुंदर है कि लोग मंदिर हाल छोड़कर बाहर निकलना नहीं चाहते ऐसे, हैं? तो प्रभुपाद जी की अपेक्षा थी कि इस तरह हमारे मंदिरों में दिव्य ध्वनि हमेशा गूंजते रहे, हाँ? तो नहीं तो मैंने मंदिर क्या होता है, मंदिर है, मंदिर का हॉल है, पूरा मंदिर में मैंने भक्तों को बोला कि एक क्षण के लिए भी मंदिर के हॉल में ये जैसे श्मशान का शांति नहीं रहना चाहिए, हाँ? तो हमेशा हरिध्वनि रहना चाहिए। हैदराबाद मंदिर में बहुत सालों से उनका प्रैक्टिस है, मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद अनेक लोग आते हैं दर्शन के लिए, उस समय प्रभुपाद जी का लगा देते हैं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताम भो निधि। अभी नए लोग आते हैं, उनको मालूम हो मालूम नहीं हो उसका इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि कौन गा रहा है, शुद्ध भक्त गा रहे हैं प्रभुपाद जी, इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी ये लगाते हैं, नहीं तो ये षडगोस्वामी में अष्टकम लगाते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण भी लगाते हैं कभी। लेकिन अगर नए लोग जब आते हैं, नए लोगों को ये हरे कृष्ण पकड़ लेते हैं वो लोग, हैं? हरे कृष्णा में ये आसानी से प्रभुपाद की ट्यून पकड़ लेते हैं वो, हैं? कभी कभी हम लोग लंबा चौड़ा गाते हैं आलापना के साथ, हैं? लेकिन प्रभुपाद की ट्यून बच्चा भी पकड़ लेता है। इस तरह हम लोग दिव्य ध्वनि को ही बुनियाद बनाकर हम प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसमें जुड़ने वाले गंभीर भक्त बनेंगे और वो सब लोग और भी प्रचार प्रसार करके इस दिव्य ध्वनि को फैलाएंगे वो लोग। सो दैट इज द एसेंस ऑफ अ टेम्पल, वेयर एवर वी आर द स्टैंडर्ड इज सेम फॉर अ डिवोटी। क्योंकि गौरंग प्रभु रिसेंटली बोल रहे थे, एक भक्त पूछ रहा था कि प्रभु जी आपके लिए अच्छा कमरा बनाया है इधर चौपाटी मंदिर में। बोला कमरा अच्छा है लेकिन ठहरने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो बोले अभी मेरे जीवन ये सूटकेस के अंदर है बस। वो बोले कि हर दिन हर 2 दिन हम लोग ऐसे प्रवास में होते हैं। अनेक लोग अच्छे अच्छे जगह ठहरने के लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ठहरने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम है ऐसे। तो वो बता रहे थे कि व्हेन यू ग्रो, टाइम हो गया अभी, देखिए हम सीनियर बढ़ने के बाद जिम्मेदारी जब बढ़ता है तब वेर एवर वी आर, वी चैंट, वी सिंग आरतीज, वी रीड Prabhupada books. So that is the same standard. Basically we stay in touch with sound vibration, because Prabhupada says the spiritual master lives in a sound vibration and the follower lives with him, ऐसे बोलते हैं। गुरु और आचार्य वो दिव्य ध्वनि में रहते हैं और उनके अनुयायी उनके साथ रहते हैं। वो दिव्य ध्वनि के साथ जो कनेक्टेड है वही उनके साथ रहते हैं, and the follower lives with him through the sound vibration. So I'm sorry for not coming on time. 8 बजे मैंने क्लास रखा था लेकिन आ नहीं पाया. Now I have to take a quick bath. 9:15 if you leave, it's all right. I can catch, it takes about 20 minutes. Perfect. 9:15 I'll be ready. Shri Prabhupada ki. So Rasanpu, I'll pray that your project gets completed on time. What is your estimated time for this project? The planning. About 5 hours, 5 years? Two stage actually we are planning. Phase 1, phase 2. One big temple we are planning in 1 year. Acha. That's the modifications. That will be the temple hall. Temple hall. Okay. This is temporary for maybe 6 months or 1 year. Right. And then we'll start for big project. Ah. Make master plan. And the temple will remain the same, is it? Temple we can move on after Acha. construction complete. That will take us 5-7 years or maybe 10 years. Aha. So this in 1 year you want to make a temple hall for the, which means about 1,000 people? Yes. Same thing I think our Calcutta is also doing.
Just 1,000 people can come and festival and all can go on for 5 to 6 years.